Hello to all the students of MCOM second year. I am Professor Sonia Digwa. Today I welcome to all of you in our online YouTube lectures. Okay, so in this lecture we have discussed about our subject, specialized subject for accounting student will be advanced auditing. In last lecture we have completed our related concept about second chapter is advanced auditing. Okay, we first chapter we have also completed our first chapter on online basis in YouTube channel. In my YouTube channel all videos of first chapter will be there. If you watch regarding, if you query about any kinds of query about first chapter, you have to watch on my YouTube channel Sonia Digwa. You all the videos of first chapter of my both subjects will be specialized auditing or advanced auditing. So in this session we have discussed about second chapter. Remaining points of our second chapter will be, okay, the second chapter we have continue. Okay, so this is our last session of second chapter. This is our last lecture of second chapter. So in last lecture we have completed that points is internal control, basic controls. This is the this we have discussed in our previous lectures. 3 to 4 lectures, if on around 5 lectures we have taken to on second chapters. Okay, in last session we have discussed the use of computer for audit purpose. The use of computer for audit purpose. We have discussed the points: more reliable inbuilt control procedure, automatic updating. Okay, we have discussed that point in a detailed explanation. First point explanation I have given you in this slide. What kinds of computer will be have used, whether we have making or conducting or preparing and auditing in a day-to-day basis of a client. Okay, whether we use a computer in or using a computer for making an auditing, it is more reliable or constantly or more flexible than a manual system. In a manual system the auditor make extra effort to making or preparing an audit report, but in computerized system the auditing will be more flexible compared than manual system. Okay, so computer system is more flexible or reliable or constituent than manual system. Okay, so first point we discussed that point in that way. Inbuilt control procedure, inbuilt control procedure, whether we have using control procedure, so we have to ensure about all kinds of aspects which we have maintaining controls on our inventories, falling of inventories, overdue payments about regarding the sales and purchase, if our market value will be downfall or our stock will be have less. So we have use in control procedure for maintaining or for doing less kinds of procedure for to control our transactions or making falling of inventory to control that kinds of okay, so procedure. So in computerized that system control procedure will be automatic. So in whether we have used auditing control procedure in our auditing, as per if we use computer procedure, control procedure on computer, the control procedure on computer will be automatically. So directly we maintain that transaction will be on automatic way. But if we have used a manual system, the auditor should make an use of extra efforts for that purpose. Okay, so inbuilt control procedure we have discovered that point also in last lecture. Automatic updating I will say computer have program will be automatically updated. Whether an auditor should maintain a single file
of purchase raw material, sales raw material, or regarding suppliers of accounts like purchase और इन्वेंट्रीज, इन सब का जो भी रिलेटेड काम रहता है, तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो एक सिंगल फाइल में डायरेक्टली सारी एंट्रीज फीडअप कर सकते हैं रिगार्डिंग सप्लायर्स, परचेज और इन्वेंट्री. बट मैनुअल सिस्टम में ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव टू नीड अपडेट द फाइल एज पर देयर चार्जेस. तो जिस सप्लायर्स में क्या काम है उसको अपनी अलग फाइल प्रिपेयर अपडेट करके रखनी पड़ेगी, परचेसर का वो अपनी फाइल अपडेट करनी पड़ेगी, और इन्वेंट्री. सो इन मैनुअल सिस्टम में ये प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है. ऑटोमेटिकली अपडेटिंग क्या करता है, कंप्यूटराइज में जो भी रिलेटेड वर्क है एक सिंगल फाइल में हम सबकी अपडेट कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस की. बट ऑटोमेटिकली फाइल ट्रांजैक्शंस में क्या रहता है, तो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिनको पर्टिकुलर बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, दे हैव मेक अपडेट और उनको सारी फाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी एज पर देयर charges. Okay, so in the last section we have discussed that point in a detailed way. So now we move forward to our next or last concept. We have also discussed the area of use computer in auditing. So इसके टोटल 9 पॉइंट्स थे. वी हैव डिस्कस दैट पॉइंट्स इन अ डिटेल वे कि ऑडिटर को जब वो ऑडिटिंग कर रहा है कंप्यूटर के अंतर्गत तो उसको क्या क्या यानी कि स्टेप्स करने पड़ेंगे और किन किन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा वेदर दे हैव मेकिंग एन ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटर. सो वी हैव डिस्कस टोटल 9 points of that. So in now we move forward to our next point. This is our last point or last concept in this chapter number 2. Okay, chapter number 2. So all of you have one query regarding के सिलेबस में हमारा ये हमारा लास्ट चैप्टर है, बट हमने ये चैप्टर 2 पहले लिया है. ओके, so we have taken our 2nd chapter or this is our last point of 1st chapter. The first I will read that concept, computer assisted audit techniques and tools. Computer assisted audit technique and rules. A computer assisted audit techniques or tool is nothing but a computer program and data. तो कंप्यूटर असिस्टेंट टेक्निक्स और ये टूल्स जो हैं ये कुछ नहीं है बट कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं और डाटा इसके अंदर. तो ये इसके अंदर हम लोग क्या है टेक्निक जो भी अगर ऑडिटिंग कर रहे हैं हम कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर, तो कंप्यूटराइज सिस्टम के अंतर्गत ऑडिटर को कौन कौन सी टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे वेदर दे हैव यू मेकिंग एंड ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटर्स. तो ये क्या है कंप्यूटर टेक्निक्स टूल, कंप्यूटर प्रोग्राम है जब ऑडिटर को डे टू डे डाटा को रिकॉर्ड करना है, डाटा को मेंटेन करना है, डे टू डे ऑडिटर को यूज़ करने हैं प्रोसीजर. ओके, वेदर दे हैव मेकिंग यूजिंग ऑफ ऑडिटिंग. सो ऑडिटर को रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे तो इन डाटा को प्रोसेस करने के लिए तो वो टेक्निक्स और टूल्स फॉलो करते हैं. Okay, before using programs for audit purpose, the auditor should substitute their appropriate validity. तो ऑडिटर पहले क्या चेक करेगा कि हाँ जो टेक्निक्स और टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं वो वैलिडेट है, फ्लेक्सिबल है, वैलिडेट है उस सिचुएशन में कि नहीं है. तो ये ओके, तो ये ऑडिटिंग और के क्या है टूल्स और टेक्निक्स हैं जो ऑडिटर फॉलो करेगा टू रिकॉर्ड देयर डाटा और टू मेंटेन देयर data. Okay, so first point will be test packs and test data. So first I will read that concept in this slide. Test packs or test data represent a set of test data prepared by the auditor himself or by using any such data prepared by the internal auditor of client. Test pack data क्या शो रिप्रेजेंट करता है? The test pack data will represent a test data. कि क्या है टेस्ट पैक के अंदर जो टेस्ट डाटा है हमारा सारे के सारा जो भी ऑडिटर कौन प्रिपेयर करता है बाय ऑडिटर हिमसेल्फ. ऑडिटर क्या प्रिपेयर करता है जो भी डाटा उनको रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले ऑडिटर क्या यूज़ करेगा टेक्स्ट पैक के अंदर का, तो उसको रिकॉर्ड करेगा और उस डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद ऑडिटर की.
बाय यूजिंग दिस डाटा टेक्निक्स। तो ये डाटा टेक्निक ऑडिटर यूज़ करेगा फॉर मेंटेनिंग देयर डाटा ऑन अ डे टू डे बेसिस और बाय सच डाटा प्रिपेयर बाय द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द क्लाइंट। और इस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और जो उनका अंतर्गत इंटरनल ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इन डाटा को वो रिकॉर्ड करे। पर इन डाटा को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं, दे हैव यूजिंग टेक्निक्स। और इन डाटा को ऑडिटर टेस्ट भी करेगा कि हाँ ये डाटा विल बी फ्लेक्सिबल और नॉट। ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस ऑल्सो के व्हाट काइंड्स ऑफ टेस्ट टेक्निक विल बी मे यूज ऑफ टेस्ट packs serve as an assurance about the correct functioning of tested programs। ओके, सो जब हम लोग टेस्ट पैक डाटा यूज़ करते हैं तो ये हम डाटा क्यों यूज़ करते हैं और यानी कि टेक्निक क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब हम डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है उस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या नहीं, और वो डाटा का करेक्ट ट्रांजैक्शंस है क्या नहीं है, और करेक्ट फंक्शन टेस्ट पैक क्या करेक्ट फंक्शन है डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए कि नहीं, ये हम उसमें देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट पैक डाटा यूज़ करेंगे। ओके, however its limitation that preparation of the test data required care and expertise of the part of the auditor. He should ensure that program tested author actually used by the client and that actual record remain and affected by the test used by used by him। सो हाउएवर जब डाटा टेस्ट पैक डाटा ऑडिटर को किसको यूज़ करने के लिए देता है, जो भी जिसको एक्सपर्टाइज नॉलेज हो कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की नॉलेज हो, ऑडिटर को सारी नॉलेज होती रिगार्डिंग कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है इसका, टेस्ट डाटा का कोई डिसएडवांटेज तो नहीं होगा हमारी ऑडिटिंग में। तो ऑडिटर को इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग देयर एक्सपेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, रिगार्डिंग दे मेंटेन द ट्रांजेक्शन, रिगार्डिंग दे हैव टू मेंटेन व्हाट टाइप्स ऑफ फाइल्स, कोई हर एक टाइप की फ़ाइल जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मास्टर फाइल्स, ये सारे जो हमारे लेजर्स हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इसके अंतर्गत सारे के सारे जो टेस्ट डाटा के अंतर्गत हैं ये हम सारे देखेंगे। तो ये प्रॉपर डाटा रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और विथ अ प्रॉपर वे इन प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम की जिस डाटा हम जिसमें फॉलोअप करेंगे, तो ये सारे जो हमारे डाटा फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, लेजर्स हैं, जर्नल्स हैं, और सिलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस जो हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं उनका प्रोसेसिंग प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शन में हो रहा है क्या नहीं है। और टेस्ट क्या करेगा, तो इन ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली चेक करेगा कि हाँ इनकी जिसकी रिसिप्ट है और पेमेंट है, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, डिबेंचर और क्रेडिटर्स, उनकी फाइल्स प्रॉपर कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसका जो क्लाइंट्स हैं उसका डाटा सारा कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, उसकी फाइल्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड to all kinds of received payments from the debtors will affect the sundry debtors। तो ये sundry records ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं नहीं, तो इनका पहले क्या रिकॉर्ड जब हो जाते हैं तो उसका क्या हम करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हाँ ये जिस प्रोग्राम में हमने क्या है देख रहे हैं कि हाँ इस प्रोग्राम में प्रॉपरली हो रहे हैं, और वो टोटल ऑडिटर के रिकॉर्ड करता है उन सारे ट्रांजैक्शन को। और हाँ ये टेस्ट पैक जो टेक्निक है वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, ये ऑडिटर को देखना रहता है, और इसकी पर्पस सही है कि नहीं है। तो ऑडिटर इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है प्रॉपर वर्किंग पेपर्स में। तो ऑडिटर जब टेस्ट पैक टेक्निक यूज़ करता है तो उसको फॉर कंट्रोल पर्पस ऑफ द ऑडिटर शुड मेंटेन प्रॉपर वर्किंग पेपर्स। जब वो टेस्ट पैक टेक्निक यूज़ करता है तो उसको सारे वर्किंग पेपर्स जो भी रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसको सारे डे टू डे सारे के सारे एंट्रीज प्रॉपर करनी रहती है। ही शुड ऑल्सो इंश्योर अबाउट दैट के जो क्लाइंट का सारा डाटा है, एक्चुअल डाटा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं है। और जो टेस्ट टेक्निक है वो इस डाटा को अगर हम प्रॉपर दोबारा रिपीट से हम उसको चेक कर रहे हैं तो वो ऑडिटर को और क्लाइंट के जो डाटा को इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही है। Okay, so tested techniques will not affect the data which are used by him। Okay, so this is our first point of
techniques and tools of computer assisted, the test pack data and test data which are useful for the auditor, whether they have making and using of auditing in computers or the test pack data will ensure provide an flexibility whether the use of test pack they have providing a correct assurance about the functioning of tested programs. Okay, this is our first point of tested programs. So now we move forward to a next technique. The next technique of and tools of computer assistance audit will be computerized audit programmers. कंप्यूटराइज ऑडिट टेक्स्ट पेक टेक्निक्स में हमने टेस्ट डाटा में हमने क्या देखा, जो भी डाटा को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करें, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें. और कंप्यूटराइज ऑडिट प्रोग्राम में फर्स्ट आई विल रीड that explanation. Computers are used in auditing to provide audit information required by the auditor for making judgment and drawing conclusion. सो ओके, कंप्यूटर के अंतर्गत जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो कंप्यूटर का जब हम यूज़ कर रहे हैं अपनी ऑडिटिंग में, तो ऑडिटिंग में यूज़ कर रहे हैं तो ऑडिटर को सारी के सारे अपने ड्रॉ करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन कि हाँ उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोलिंग सारी की सारी उसको प्रॉपर तरीके फ्रॉम स्टार्टिंग टू कंक्लूजन उसको प्रॉपरली अपना जजमेंट देना है. जब वो कंप्यूटर पे भी ऑडिटिंग कर रहे हैं तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन की नॉलेज होनी चाहिए जो उसको ऑडिटर को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वेदर दे हैव मेकिंग एन ऑडिटिंग और वेदर दे हैव गिविंग देयर जजमेंट रिगार्डिंग द ऑडिटिंग. तो ऑडिटर को क्या है, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी. सो हाउ ऑडिट विल बी वर्किंग इन कंप्यूटर्स, और उसको क्या है प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू कंक्लूजन ऑफ एन ऑडिटिंग, whether they have making and use in computer also. So move to next slide. In next slide we have mentioned the computerized audit program explanation. Okay, the use of computer in a planning, conducting and concluding audit will be great help to the auditor. जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, कंडक्टिंग करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए अपने डिपार्टमेंट्स को, और जब हम ऑडिटिंग कर रहे हैं और हम ऑडिटिंग करते समय जब हम कंप्यूटर का ऑडिटिंग करने में, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, ऑडिटिंग करने में कोई भी पर्टिकुलर क्लाइंट का, तो उसके जब हम उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, वेदर वी आर मेकिंग अ कंप्यूटर, तो ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा वेदर वी हैव कंडक्टिंग प्लानिंग, जब हम ऑडिटिंग ही करेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज हमें लगेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, डिवीजन ऑफ वर्क, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंडक्टिंग और कंक्लूडिंग. तो ये सारे जब हम स्टार्टिंग से प्रोसेस से लेके प्लानिंग से लेके कंक्लूडिंग प्रोसेस तक, तो ये कंप्यूटर का जब हम यूज़ करते हैं तो वो ऑडिटर को फ़ायदेमंद रहता है. द ऑडिटर विल बी ग्रेट हेल्प टू द ऑडिटर. कंप्यूटर ऑडिटर को बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है, बिकॉज वो क्या रिड्यूस करता है, ऑडिटर का टाइम रिड्यूस करता है. जब हम मैनुअल सिस्टम यूज़ करते थे पुराने टाइम्स पे ट्रेडिशनल बेस पे, तो उसके अंदर ऑडिटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायरमेंट लगता था और नंबर ऑफ स्टाफ भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते थे. बट अब जब ये कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से, कंप्यूटराइज मॉडर्न एनवायरनमेंट की वजह से ऑडिटर को बहुत ज़्यादा समय बच जाता है, ताकि वो रिव्यू अच्छी तरह, और जब समय बचता है तो ऑडिटर रिव्यू कर सकता है अच्छी तरीके से अपनी ऑडिटिंग को, और जो उसने ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करी है उसको रिव्यू कर सकता है. ओके, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर विल बी सेव्स टाइम. तो ओके, कंप्यूटर क्या करता है, सेव टाइम करता है. हाउएवर टू यूज़ द कंप्यूटर इन ऑडिटिंग रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सिस्टम. ओके, सो जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, ओके, कंप्यूटर को अगर हम ऐसे डे टू डे बेसिस पे भी यूज़ करते हैं, तो अगर कोई एक आधी कंपनी अपॉइंट करती है एज ए कंप्यूटर एक्सपर्ट को, तो जब वो अगर उनकी कंप्यूटर एक्सपर्ट की पोस्ट है तो उसके रिलेटेड क्या होना चाहिए, उनकी मेन रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि उस जो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि ऑडिटर को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ कंप्यूटर. क्या हाँ कंप्यूटर क्या, व्हाट इज़ द
what kind of helps in hardware, what kinds of help in computer softwares, what kind of software which we have used to maintaining these records, this data, this file, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट है, तो ऑडिटर को मेनली क्या रहनी चाहिए, सफिशेंट नॉलेज, और सफिशेंट नॉलेज के अलावा उसको एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग देयर auditing. So they have proper knowledge about the system. It is also necessary to know that computerized auditing, जब हम कंप्यूटर का, आजकल कंप्यूटर का ही यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो कंप्यूटराइज ऑडिटिंग जब असिस्टेंट्स हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये दो टेक्निक्स हैं जो ऑडिटर को फॉलो करता है, वेदर दे हैव मेकिंग एंड यूजिंग ऑफ ऑडिटिंग. Okay, so only to provide a help to the auditor to his professional judgment. तो कंप्यूटराइज ऑडिटर में तो ऑडिटर जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, जब वो कंप्यूटराइज में करता है तो ऑडिटर सिस्टम में करता है. कंप्यूटराइज ऑडिट असिस्टेंट सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है, ताकि ऑडिटर वो यूज़ कर सके और उसके बेसिस पे अपनी प्रोफेशनल नॉलेज और जजमेंट के टूवर्ड्स वो टेक्निक्स और रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेंस कर सके अपनी ऑडिटिंग की. ओके, मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड. इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव कंप्लीटेड 2 पॉइंट्स. तो उसके ये जब हम लोग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक टूल्स इज़ अ ग्रेट हेल्प टू द ऑडिटर. तो ये जब टेक्निक्स और टूल्स हम यूज़ करते हैं, वेदर वी हैव मेकिंग एन ऑडिटिंग इन कंप्यूटर, तो ये ऑडिटर को फ़ायदेमंद रहता है. हाउ एवर द अडॉप्शन ऑफ सच टूल्स एंड टेक्निक्स शुड बी अप्रोप्रिएट टू हैंडल द ऑडिट. सो ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, तो ऑडिटर इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके इनको. हाँ, कौन कौन से रिसोर्सेज लग रहे हैं, किस सिचुएशन में किस टाइप का रिसोर्स हमें चाहिए, और क्या फ्लेक्सिबल है क्या नहीं है, कौन डाटा किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड रिसोर्सेज. तो ये टेक्निक्स और टूल्स के टूवर्ड्स में हम ये चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, वेदर वी आर मेकिंग एन ऑडिट. ओके, द ऑडिटर शुड वेज द audit demand before he decide the contents of computer assistant audit tools. He would make use of its requires knowledge and experience. Okay, so auditor जब यानी कि ऑडिटिंग की डिमांड को यूज़ करता है, तो जब ऑडिटिंग की क्या क्या डिमांड्स हैं वो उसको प्रॉपर एनालाइज करने पड़ेंगे कि हाँ कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से कंटेंट्स. जब हम लोग कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक टूल्स भी यूज़ करते हैं ना, तो ऑडिटर को प्रॉपर कंटेंट क्या, हाँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू प्लानिंग करनी, कंटेंट्स क्या हैं ऑडिटर के, क्या हाँ ऑडिटर का यानी कि जिसकी वो ऑडिटिंग पर्टिकुलर क्लाइंट्स की कर रहे हैं, तो कंटेंट्स में वो क्या देखेगा, नेम ऑफ क्लाइंट्स, फिर सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग का, उनका मेन उसका बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑडिटर को देखना रहता है. थर्ड, उसके कंपनी की प्लेस कहाँ पर है, जब क्लाइंट का बिजनेस क्या नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंटेंट्स, तो ये सारे कंटेंट्स हैं. और उसका यानी कि क्या है प्लेस कहाँ पर है, जो कौन सी जगह पे ऑडिट यानी कि क्लाइंट का बिजनेस है, और कम उसकी डिमांड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उनके. तो ये सारे कंटेंट्स ऑडिटर को पहले देखने रहते हैं, वेदर दे हैव यूजिंग कंप्यूटराइज असिस्टेंट टूल्स. ओके, सो ही रिक्वायर्स अ special knowledge regarding the computer, and he should also have experience whether they have using or making an computerized auditing. ओके, जब वो कंप्यूटराइज ऑडिटिंग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो ऑडिटर को, तो कंपनी किसको चूज़ करेगी, वेद कंपनी हैव चूज अ क्वालिफाइड पर्सन फॉर दैट पर्पस बिकॉज दे हैव एक्सपर्टाइज नॉलेज or regarding the computer. Okay, the auditor should be familiar with the system of their client. Okay, so auditor को क्या यानी कि जब क्लाइंट कंपनी चूज़ करती है और क्लाइंट चूज़ करता है ऑडिटर को, सो कंप्यूटर ऑडिटर मतलब क्या होना चाहिए, जब वो उनको अपॉइंट करते हैं तो वो धीरे धीरे उनके सारे द ऑडिटर शुड बी फैमिलियर टूवर्ड्स विद दिस सिस्टम, और उसको नॉलेज होनी चाहिए क्लाइंट के बिजनेस की, नेचर की. तो ये सारे कंटेंट्स है द मेकिंग अबाउट द कंपनी ऑफ एन ऑडिटर. सो दिस इज अवर कंट्रोलिंग और कंप्यूटर असिस्टेंट टेक्निक्स एंड टूल्स.
So there are two types of participant techniques. First is test pack or second is computerized audit programs. These are our two techniques, or this is our last point in this first chapter. Okay, so this is our last point in this chapter. So from today we have completed our second chapter of advanced auditing. So second chapter of advanced auditing will be depend on which I have taken according to syllabus. This is your last chapter. Okay, आपके syllabus में आपका last chapter है, but मैंने आपको ये chapter as an सेकेंड चैप्टर आपको टीच किया है. आई हैव टीच यू दिस चैप्टर एज पर ऑन माई बेसिस. ओके, सो एज पर ओके, तो आपके सिलेबस में ये सारे पॉइंट्स थे. वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड चैप्टर सिलेबस. ऑल काइंड्स ऑफ पॉइंट्स वी हैव कंप्लीटेड in this chapter. Okay, if you have any query regarding this chapter you can watch also in this lectures. और मेरे जो भी सेकेंड चैप्टर के लेक्चर पब्लिश हुए हैं अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स आई हैव पब्लिश ऑन माय चैनल, यूट्यूब चैनल ऑफ दिस चैप्टर सेकेंड एडवांस ऑडिटिंग. तो ये आप सारे के मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो. यू कैन वॉच ऑन माय चैनल. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस लेक्चर और दिस चैप्टर. सो नाउ वी हैव ओवर दिस चैप्टर और दिस सेशन वी हैव ऑल्सो ओवर. Okay, so all of you like that video, subscribe my channel and comment box mention your details, and please notification button, please mention, click the notification button for if you have know about me. आपको अगर मेरे और भी वीडियोस आपको डायरेक्टली आपके चैनल्स पे आपके डायरेक्टली मेंशन होंगे. इफ़ यू press or if you click on notification button you can know my latest video. Okay, so mention your details in comment box and like and also subscribe my channel. So thank you to all of you students. So the lecture we have over, this lecture we have over. So thank you to all of you students.